Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will revise atomic structure, and as you know that we are revising Planck's quantum theory. Okay, and in which we were studying hydrogen spectrum, and we saw there are 6 lines in the hydrogen spectrum. First one is the Lyman, next one is the Balmer, then Paschen and Pfund and Brackett and Pfund and Hyman, Humphrey. These are the 6 line in the hydrogen spectrum, and we know that which one in the UV radiation, such as if we are talking about the Lyman series, the Lyman series come into the UV radiation. Balmer series come in the visible radiation, and next one is the Paschen and Brackett come into the infrared. Then Pfund and last Humphrey both are in the far infrared radiations. Okay, today we will see the numericals, then we will see the next theory, Bohr's model. Then here is the, today we will see the wave number. First, wave number. In earlier theory we have learned wave number is the what? Reciprocal of, it is the reciprocal of, it is the reciprocal of what? It is the reciprocal of wavelength. It is the reciprocal of wavelength. Okay, you can and it is denoted by, nu bar. Okay, thus the nu bar is equal to 1 upon lambda. This is the equation, and also nu bar is equal to R Z square ब्रैकेट में 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Okay, where R is the Rydberg constant and Z is the atomic number. Note down. Then where N, what is N? For Lyman series, if we see, first of all you can write R for Rydberg constant, and its value is 10677. Then the value of Rydberg constant is 109677.8 per centimeter. Z is the atomic number.
and n1 is 1 2 3 4 something like this, and n2 1 is 2 3 4 5 6 just तो ये हमारा यहाँ पे हो गया वेव नंबर रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार इक्वल टू 1/λ न्यू इक्वल टू rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एंड r is the Rydberg constant, its value is 1096778 per centimeter. Z is the atomic number, n1 and n2 is the number of series lines. Okay, have you noted this? Okay, now we will see some more points. In case of every series, first line has longest wavelength and shortest energy. In case of each series, first line has longest wavelength and shortest or you can say shortest energy. Okay, shortest energy, longest wavelength and shortest energy, and यहाँ पे for n1 is equal to 1 and for n1 is equal to infinity. In each series shortest wavelength length and longest या largest energy ठीक है. in case of each series for n1 यानी first line has the longest wavelength and shortest energy. For the n2 is equal to infinity in each series shortest wavelength and largest energy. ओके, ये नोट पॉइंट इसको बहुत ज़रूर नोट कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हेल्पफुल है ये. ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे बोर्स. क्योंकि हम लोग जो भी अभी थ्योरी पढ़े, मैक्सवेल की थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से लेकर के प्लैंक की क्वांटम थ्योरी, ये सारी चीज़ें बेस था बोर्स के मॉडल को डिफाइन करने के लिए. ठीक है, तो अब हम लोग जो है बोर्स के एटॉमिक मॉडल को देखेंगे.
कि किस तरह से बोर्स का एटॉमिक मॉडल डेवलप किया। ठीक है, ओके। तो हम एटॉमिक मॉडल ले, बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है इट वाज proposed by it was proposed it was proposed proposed by proposed by it was proposed by Niels Bohr in 1913 and it is applicable only applicable for only applicable for only applicable for one electron containing element, one electron containing atoms like H, He plus, then Li plus, etc. ठीक है, तो ये प्रपोज किया नील्स बोर ने 1913 में। 1911 में न्यूक्लियस की खोज हो गई थी और 1913 में ईयर 1913 में जो है कि मॉडल आ गया और ये केवल उन एटम्स के लिए एप्लीकेबल था जिसके अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, अब इस थ्योरी के एजम्पशंस क्या हैं उसको हम जान लेते हैं। एजम्पशंस ऑफ बोर्स थ्योरी, बोर्स मॉडल, या कहते हैं बोर्स मॉडल। इसके क्या क्या एजम्पशंस है। एक तो इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं राउंड न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऐसे ऑर्बिट में मूव करते हैं, फिक्स परमिसिबल जो है कि ऑर्बिट में घूमते हैं। फिक्स परमिसिबल का मतलब हो गया कि उस ऑर्बिट की एनर्जी है जो है फिक्स है, उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी का ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, या ये कह सकते हैं उस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी होगी उससे ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, पहला एजम्पशन ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, तो ऐसे ही केवल सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है कि रोड को इस तरह से बनाया जाता है, 4 लेन 5 लेन 6 लेन जो बने होते हैं और हर लेन की अपनी एक स्पीड होती है, उस लेन में उसी स्पीड से गाड़ी चलती है। अगर उस लेन में चलने वाली पर्टिकुलर लेन में चलने वाली गाड़ी की स्पीड कम या बहुत ज़्यादा हुई तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसी तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ एक स्टेशनरी कह सकते हैं ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी फिक्स है, उस फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में जो है कि इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। उस ऑर्बिट को छोड़ कर के वो जंप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स है। ठीक है, अगर जंप किया तो क्या होंगे, जंप किया तो वो बाहर की ओर निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला यहाँ पे हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन
move around nucleus electron move around nucleus in a orbit of fixed energy. Electrons move around nucleus in orbit of fixed energy, and such orbits are known as stationary orbit. ठीक है, यहाँ पे जो भी इसके हिसाब से पहला पॉइंट ये हो गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं वो एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो उसको हम स्टेशनरी एनर्जी भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक बात पक्की हो गई। जबकि रदरफोर्ड में क्या था कि सीधे बोल दिया उसने कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं, और वहाँ पे ये नहीं डिस्क्राइब किया गया था कि उसकी एनर्जी लेवल फिक्स होता है या नहीं। इसीलिए मैक्सवेल ने कहा कि अगर एनर्जी लेवल फिक्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रोटेट करते करते न्यूक्लियस के ऊपर आके गिर जाएंगे। तो अब इस मैक्सवेल की थ्योरी और क्वांटम थ्योरी के बेस पर जो है कि ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं एक स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर। वो ऑर्बिट जिसकी एनर्जी फिक्स होती है उस ऑर्बिट के अंदर एक पर्टिकुलर एनर्जी वाला ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ताकि वो उस ऑर्बिट को छोड़ करके कहीं बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला एजम्पशन। अब अगर हमें यहाँ पता करना हो कि कितने नंबर ऑफ वेव्स एक ऑर्बिट के अंदर होंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो मैक्सवेल ने बोला कि एनर्जी कुछ इमिट करेंगे, तो वो एनर्जी इमिट तो करते हैं मगर बहुत थोड़ी सी अमाउंट में होती है, और वह एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशंस भी होते हैं। तो नंबर ऑफ वेव्स equal to circumference of orbit and wavelength. Number of waves is equal to circumference of orbit and upon wavelength. ठीक है, circumference of orbit upon wavelength। ठीक है, तो हमें किसी का भी वेव नंबर, कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगी उसके अंदर, हम इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल में, एक्साइटेड स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो वो उसी एनर्जी लेवल के अंदर ऐसा काम करता है, किसी दूसरी एनर्जी लेवल पे नहीं जाता है, सेम उसी एनर्जी लेवल में ही केवल वो रोटेट। तो यहाँ पे जो है कि अब नेक्स्ट पॉइंट ये बोला कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमते हैं जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वो फिक्स होता है। यानी ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के बराबर होता है। कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो वो उसका लीनियर मोमेंटम वहाँ पे मिलेगा, m × v होता है।
लेकिन अगर कोई सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, वो एम वी आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैन मूव in those orbits whose angular momentum is momentum is whose angular momentum is equal to integral multiple of h upon 2 pi. Okay, that is MVR is equal to h upon 2 pi into n. This is the formula. तो यहाँ से ये हमारा हो गया, इसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं इसको हम बता देते हैं। ठीक है, इसमें m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v is velocity, r is radius, and v is velocity, r is radius, m is the mass of electron, radius of orbit ठीक है, and you know that h is the Planck constant, and n is the number of line, ठीक है। ये पूरा MVR जो है, MVR ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, MVR इज द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो है कि दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट तो हो गया कि एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में घूमते हैं। दूसरा ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम ही रहे हैं ऑर्बिट में तो उस ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। और जो भी एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला है कि जो भी एनर्जी वो इमिट करते हैं वो क्वांटा के फॉर्म में होता है। और क्वांटा जो होता है वो एक स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की तरह से होता है
अगर वो एनर्जी इमिट करते हैं तो अपने ही ऑर्बिट के अंदर, अपने ही सेल के अंदर एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वापस चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से जो एनर्जी चूँकि फिक्स है, तो अगर वो कोई भी एनर्जी उसी एनर्जी को लेकर के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गए, अब उससे ज़्यादा एनर्जी होगी तब उस सेल को बाहर, सेल से बाहर निकलेंगे, अदरवाइज क्या होगा, वो रिटर्न होकर के ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से वो किसी सेल को छोड़ करके न्यूक्लियस पे जा नहीं पाते हैं। तो ठीक है, तीसरा पॉइंट देख ले। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन, थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कैन एब्सॉर्ब, emit or absorb energy only when it jump from higher energy level to higher energy level to lower energy level वाइस वर्सा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और वाइस वर्सा। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब तभी करता है जब वह एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में, पर्टिकुलरली या तो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो अपनी एनर्जी इमिट करता है, और जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इसी दौरान जो एनर्जी का लेन देन होता है, अदरवाइज वो फिक्स एनर्जी लेवल में वो क्या करता है, घूमता रहता है। इसीलिए कभी न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन गिरता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं क्या है। लास्ट पॉइंट बोर ने ये बताया कि जो भी स्टेबल स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट है। किसी भी एटम का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है एटम का, वो ग्राउंड स्टेट है। अगर ग्राउंड स्टेट में मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम कहीं सिट बैठे हुए हैं तो वो हमारा स्टेबल स्टेट है। ठीक है, वो हमारा क्या है, स्टेबल स्टेट। अगर हम वर्किंग हैं तो क्या है, अनस्टेबल स्टेट, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो फोर्थ ये होता है कि द मोस्ट स्टेबल state of an atom is ground state or normal state ठीक है, तो यहाँ से हमने ये जान लिया कि ग्राउंड स्टेट में अगर कोई एटम है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन न इमिट हो रहे हैं, न एनर्जी इमिट कर रहे हैं, न एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक नॉर्मल स्टेट में सर्कुलेट हो रहे हैं एकदम नीचे के लेवल में, तो उनका वो ग्राउंड स्टेट है। और उस ग्राउंड स्टेट में एटम क्या होता है, स्टेबल स्टेट में होता है। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हायर स्टेट में जा रहा है लोअर से, या हायर से लोअर स्टेट में आ रहा है, यानी वो एक्टिव फॉर्म में अनस्टेबल है, वो रिएक्शन करने के लिए तैयार है।
ठीक है, तो वो उसकी अनस्टेबल स्टेट हो गई। आई बात समझे? तो इस तरह से हमने 4 बातें इसमें जान ली बोर्स के एटॉमिक मॉडल में। पहला तो हम लोगों ने जान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में घूमता है, जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। और नंबर अगर हमें पता करना है, नंबर ऑफ वेव पता करना है, तो सरकमफ्रेंस को वेवलेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ वेव्स कितनी प्रोड्यूस होती हैं वो पता लग जाएगी। दूसरी बात ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिस भी ऑर्बिट में, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो फिक्स होता है, वो मल्टीपल ऑफ इंटीजर होता है पाई h/2 का। तीसरी बात ये बताई कि इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी इमिट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जब वो या तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तभी। और चौथी बात बता दी कि जो हमारे एटम होते हैं ग्राउंड स्टेट में स्टेबल होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने बोर्स के एटॉमिक मॉडल को देख लिया, और हमें ये भी पता लगा कि किस तरह से ये प्लैंक के क्वांटम थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैक्सवेल के से ये इन्फ्लुएंस था। तो आज हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल को कंप्लीट कर लिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।